So, welcome to day 26 of the Magic Book by Rhonda Byrne. Yeah. Yeah, So, how was today's practice? How many cues did you see? अच्छा, किसी को कंफ्यूजन है क्यूज के बारे में कि आपको क्या देखना है? I tried to make a queue of everything. वेरी गुड, वही करना है. Everything. Yeah, When very I saw nice. clothes, I saw all the shops. I said, I have so many to be grateful. I saw shoes. I saw banks. I don't know what that. I went on queuing. I don't know if it's right or not. Perfect. It's perfect. Yeah. And while you were doing all this, were you Yes. thinking of anything else? No, only grateful. Only grateful. Yeah. So Yeah. that is the whole thing. It's like, that is one of the aspects. The thing is basically we're looking for things to be grateful for in everything. Yes. Yeah. And it's like you have given a ball of wool to a kitten. What will it do? It will just keep on, trying to untangle or, just playing with the wool. Yeah. So Yes. just like that, when we are giving such a task to our mind to be grateful, for looking for things to be grateful for, is perfect. We'll not be bothered to look at other things. We are only trying to find the clues. It's like a treasure hunt. It's like you're Yeah. just looking for clues. उसके बाद आप कुछ नहीं सोच रहे होते हो. So this is Right. very good. Even if you don't understand what is the actual practice, it's perfectly fine. Because Rhonda Byrne has said, no matter what, if you are finding something to be grateful for, that is your cue. Yeah. Okay? So that is how it is. So thank you, Sheila ji. Thank you. Thank you. Yeah. Yes. Anyone else wants to share? Yeah. जिनको नहीं समझ में आया आप बोल सकते हो. We can discuss a little more about this. हाँ दोबारा डिस्कस कर लीजिए थोड़ा सा. थोड़ा सा डिस्कस I कर have a लें. अच्छा. question. Hi, अच्छा. yeah, ma'am. I have a question. Hello, हाँ, ma'am. yes. Yeah. Hi. So lately something has not been going right in life, but I've been manifesting, and I feel positive about it. So today I was just looking at a cloud and I could just see a silver lining, and just the thought just came to me, oh, the silver lining is hopeful. So is Yeah. that a cue or is that Yes, nobody? yes, it is a wonderful cue. Is that a cue? Mane, like, I cannot tell you it is a cue or not. Okay, you have to I understand. just feel like, oh, it's a cue, but then I realized, wait, I'll just No, ask don't this get too question. much into it. It's like perfect. You think like, your life is going a little either udhar and you saw the cloud and you thought, yes, this cloud has a silver lining and my life, that is your cue. That, something nice is just coming around. This too Okay. shall pass. जैसे अपन ये बोलते हैं ना, this too shall pass. It is just like that. Okay. Regarding coming to the discussion about the chapter, how many of you have believed in this? कि बिल्ली रास्ता काट गई है, किसी ने चलते चलते छींक दिया है. How many of you? कि चलते चलते दूध की बातें मत करो, अचार मत बोलो, तेल मत बोलो. हाँ, I don't believe. यू डोंट बिलीव, बट आपने सुना है ऐसा आपके घर के सुना, आजू बाजू? बहुत बहुत सुने. बहुत सुना है. तो क्या होता है जब आपको ऐसी कोई चीज दिखती है, ठीक है, तो नॉर्मली लोगों के मन में जो फर्स्ट थॉट आता है कि अरे मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है. एक्चुअली इट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली एट वर्क. या कि आपने उसको कुछ देखा, आपको लगा अरे अब तो गड़बड़ होगा, और आपने सोचा, आपकी बिलीफ स्ट्रांग है तो वही होएगा. बेसिकली क्या हुआ, आपको कोई सिंबल दिखा, आपको कोई साइन दिखा जिसने आपकी it caught your attention basically. Yeah. So cues is also like that whatever is catching your eye, like suppose आप रश्मि जी विश्वास नहीं करते हो कि अरे काली बिल्ली आ गई तो whatever, like फलाने जन का आपने मुंह देख लिया, ओहो किसका सुबह सुबह मुंह देख लिया, the day will be like brilliant. Yeah. So that is how it will be. Oh nice, how cute. Yes. Normally she doesn't come in, but today she came and waved at all of you. So thank you. Yeah. So it's like, just one second, she's left the door open. Okay, I'll just ask her to close it. Yeah. So it's like, if you feel that, yes, seeing something and you suddenly thought, okay, wow, or maybe you forgot a birthday and you saw flowers somewhere and आपको लगा अरे flowers देख के मुझे याद आ गया कि उसका बर्थडे है ना. हुआ आपके संग ऐसा कभी? Yeah. So it is just like that. Yeah, so it is just like that you see something and you are reminded कि yes, I have to be grateful for something. It is just like that. Okay, कि आप चीजें देख रहे हो, जैसे आप आपको ही देख रहे हैं, तो if I see something behind you, a very nice design on the ceiling, I said yes, I'm so grateful कि मेरे क्लाइंट को भी ऐसी डिजाइन पसंद थी.
ओके, इट्स लाइक इफ आई सी राधिका स्माइलिंग लाइक दिस, वाओ आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे भी और ज़्यादा स्माइल करना चाहिए, यू नो, आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव थिंग्स टू स्माइल अबाउट इन माई लाइफ। मैंने जो देख के आपके मन में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आई कि इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, आपको उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। शीला जी ने शेयर किया, उन्होंने शूज़ देख के सोचा, उनके पास इतने सारे शूज़ हैं। कोई जन सोच सकता है कि अरे शूज़ देख के आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास पैर हैं शूज़ पहनने के लिए, है ना। आपने वो वाली भी स्टोरी सुनी होगी कि राजा सोचता है कौन से शूज पहने, और एक बंदा होता है वो सोचता है मेरे पास पैर हैं कि नहीं है, यू नो, दैट वे वी हैव सीन दिस स्टोरी ना, द शर्टलेस, नहीं, इट वाज अबाउट अ शर्ट और इट वाज अबाउट द शूज। ऐसा एक बचपन में उन्होंने एक स्टोरी पढ़ी थी ना ऐसी। इट इज अबाउट दैट कि आप क्या देख रहे हो और वो आपको क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होने को याद दिला रहा है, वो चीज आपको क्या याद दिला रही है, इट इज अबाउट दैट। ओके, सो थोड़ा सा क्लियर हुआ रश्मि जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो गया। Yes. So this chapter is about that कि, और ये जो है ना, ये आपको हर दिन करना है कि अगर आपने स्कूल बस देखी रास्ते में तो हो सकता है आपको अपना स्कूल याद आ जाए, अपनी स्कूल बस याद आ जाए, तो आप देखोगे अरे वो एरिया तो अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया ग्रैटिट्यूड करने के लिए, ठीक है। आपने देखा कोई ट्यूशन टीचर आ रही है घर पे और आप सडनली आपको ध्यान है, हाँ मेरी भी एक ट्यूशन टीचर थी, वो इतनी अच्छी थी, मेरे को इतने प्यार से समझाती थी, उसके कारण ही मैं मैथ्स में पास हुई, ठीक है। हो सकता है वो आपका क्यों, वो कुछ आपका ग्रैटिट्यूड पेंडिंग रह गया है। देखिए रॉन्डाबन ने क्या कहा, हमारी ड्रीम तब मिलेगी जब हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो जिस एरिया का ग्रैटिट्यूड पेंडिंग है, शी इज टेलिंग अस, वो ही हमको क्लिक करेगा, ठीक। बट अभी अगर जब तक हमको ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, तब तक हम लोग को जो समझ में आ रहा है हम लोग वही ग्रैटिट्यूड करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है जो हमको समझ में आ रहा है वो ही मेरा क्यू है। ओके, या सो थैंक यू। सो एनीवन एल्स जिसको शेयर करना है, जिसने क्यू नोटिस किया? यस मैम। हाँ यस, अमनदीप जी बोलिए। हाँ जी मैम, टुडे इट वाज सनी आफ्टर 2-3 days ऑफ रेन, सो कपड़े जब सुखाने के लिए डालने में बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज इतने क्लोथ्स पाइल अप हो जाते हैं ना रेनी डेज में, सो रियली फेल्ट वेरी नाइस दैट द सन इज आउट। Yeah, okay. So I thought yes, wonderful. Thank you, son God. इतने दिन से मेरा gratitude pending था. This is what I'm saying. ऐसी ऐसी चीजों के लिए आपको gratitude होगा, ठीक है। So that is why this practice is just amazing. Maybe you saw someone आपके dream में है कि you know you want a loving relationship with your son or your daughter, friendly relationship with your kids, yeah. और आपने देखा किसी को और आपको लगा ये आपके friend के बच्चे बहुत you know friendly हैं और बहुत फ्री हैं अपने मम्मा के संग में, एंड यू फील, यू सी देम एंड यू फील कि वाओ आई एम सो थैंकफुल दैट माई किड्स आर यू नो फ्रेंडली विद मी। तो आपको ड्रीम में जो चाहिए आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, या आप बोल सकते हो आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव हेल्दी फिट किड्स, माने आप बच्चों के लिए बोल सकते हो, रिलेशनशिप के लिए बोल सकते हो, एनीथिंग। जैसे उन्होंने तो बोला ना परफेक्ट वेट के लिए, आप किसी को रनिंग करते हुए देख रहे हो और आपको माने कि हाँ आप भी फिट हो जाओ, उसको देखो वाओ ब्रिलियंट, इज लुकिंग, ही और शी इज सो फिट, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई परफेक्ट वेट, फॉर माई वर्कआउट रेजिम, ठीक है, या माई न्यू डाइटिशियन। ऐसे करना है हम लोग को, या यस। Hello, how are you, Priya ji? I am wonderful, Renu ji. How are you? You're back from your holiday? Arey, my holidays are over, but my daughter is staying for me now with their kids. So I'm too Okay. busy for them. Okay, wonderful. Yesterday she gone to Sasural. Today I am very free that I am joining you. Okay, thank you, thank you. I'm sure you had a wonderful time with your daughter and your grandkids, and you had Yeah, of course. Last Sunday I enjoyed too much. Okay, thank you. Yes, But I'm looking so nice. Today, why are you looking so nice and pretty? What is the reason about this? all of you, magic book. Seriously, I'm going okay. अरे, thank you, Renu ji. you're so ये कि sweet. मैं लड़का हूँ तो आपको छोड़ती नहीं। Okay, thank you, Renu ji, for this compliment. I'm guessing, yeah. लाइन मारती है आपको स्टेशन के थ्रू। स्टेशन करना नहीं, लेकिन खाली आपको देखना है। So sweet, thank you, Renu ji. ठीक है, आपके हस्बैंड सुनेंगे क्या सोचेंगे कि इस उम्र में मेरी वाइफ को क्या हो गया है, हाँ, ठीक ठाक। मेरे हस्बैंड की भी जॉली माइंड है। So thank you, Renu ji. So I think प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ओके, हाँ, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। प्यार की उम्र होती है। लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। अच्छा, उसके बारे में ना एक पूरी बुक है, द पावर बुक इज ऑल अबाउट लव। Okay, so Okay. someday if you get time, please read that book. Okay, Hindi में, English में, it is just amazing. रिटन बाय Rhonda Byrne. Yeah. Rhonda Byrne, okay.
Yes, yes. Okay. Okay. So let's start the session. Nice to see you. Nice to see you. Yeah, thank you. Okay. Same here, Renu ji. Thank you so much. Yes, Deepika ji. Tomorrow I will read. Tomorrow I will read. I read today. Not today. I want to read today. Okay, yes, Radhika, you can read today because the cue that you got is what this chapter is about. Okay. So yes, Preksha, you ever sharing? Yeah, I was sharing. Yeah, bilkul. So I Much had my sweeter. tempore on Friday. It's a Okay. competition in my school. Mm-hmm. So at first I was very anxious, like how will I do it? My name is given now, how will I say? But then I get magnificent outcomes, like okay, I'll do the best that I can do, and I'll get an award also for it. I was manifesting and visualizing it. Okay. I came first in my school. Wow. Wonderful, wonderful. Thank you, Congratulations. Preksha, and more magic to you. Congratulations. वंडरफुल। तो आप समझ गए, कई लोगों को अगर अभी भी क्लैरिटी चाहिए कि मैग्निफिसेंट आउटकम कैसे करना था, जैसे प्रेक्षा ने बोला कि उसका कंपटीशन था तो उसने लिखा मैग्निफिसेंट आउटकम के प्रोसेस में ही दैट शी हैज वन अवार्ड्स, ओके, एंड शी हैज डन हर बेस्ट। तो यही है कि आपको क्या आउटकम चाहिए वो आपको लिखना है बिफोर दैट थिंग इज हैपनिंग, ओके। ड्रीम नहीं लिखनी है उसके अंदर, उस कोई भी चीज जो आप करने जा रहे हो, लाइक कंपटीशन, एन इंटरव्यू, या मदर से डिस्कशन, फादर से डिस्कशन, बच्चों से डिस्कशन, आपको न्यू फोन चाहिए उसका डिस्कशन, नेकलेस चाहिए उसके लिए पैसे, जो भी चाहिए आप उसके लिए उसका आउटकम लिखना है आपको, या सोचना है और करना है। ओके, सो थैंक यू प्रेक्षा, थैंक यू, एंड कीप यूजिंग दीज प्रैक्टिसेस मोर एंड मोर। या थैंक यू। प्रिया जी, हाँ जी बोलिए। मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी। मॉर्निंग मुझे सपना आया, उस सपने में मैं कुछ लोगों के साथ, मतलब कोई शायद मीटिंग कर रही हूँ या कोई शादी में गई, मुझे पता नहीं, लेकिन वहां पे कुछ लोग मैजिक बुक की बात कर रहे थे। वो धीरे धीरे मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या बात कर रहे हो, तो उन्होंने बोला आप शायद तुम हंसी, बोली नहीं बताओ तो सब लोग क्या बात कर रहे हो, कि मैं सब ड्रीम में देख रही हूँ। तो वो लोग बोले कि ये अभी परसों सेशन चालू किया मैजिक बुक, हम लोग को एक मैम ऐसे ऐसे बताती है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने अभी तक उनकी 24 क्लासेस अटेंड कर ली है और इतना अच्छा लगा और मेरे में काफी चेंजेस आया है उस चीज को लेकर। तो वो लोग मतलब शॉक हो गए कि मतलब किसी ने सुना है इस मैजिक बुक के बारे में। मतलब मैं खुद शॉक हो गई कि मेरे को एकदम ड्रीम आ गया इस चीज का, वरना इतने दिनों में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब आने लग गया मुझे। मैं मेरे हस्बैंड को मॉर्निंग उठते बोली कि मैंने ऐसे ऐसा मेरे को बात है, फिर मैंने प्रिया मैम का नाम लिया कि मैं प्रिया मैम की क्लासेस ले रही हूँ और वो बहुत अच्छे से समझाती है, समथिंग सब मैंने सारा चीज बताया, मतलब ड्रीम नहीं। ओके, थैंक यू। आई थिंक सोने के पहले ही हम लोग मैजिक सेशन कर रहे होते हैं, तो इसीलिए, सो थैंक यू फॉर दैट। या थैंक यू। Yes, so let's start today's chapter. Radhika has volunteered to read for us, so I'll share this. First let's do the 10 little fingers. Yeah, so unmute yourself, switch on the cameras. Just 2-3 more days for 10 little fingers. Yeah, so 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful. Yes, so yes. Yeah. So yes, Radhika, can you see what this is? This is silver lining and like ray of sunshine. Yeah. So let's start. Yeah. Okay. Magically transform mistakes into blessings. Day 26. Yeah. Day 26. Yeah. So what we are seeing here, आज का चैप्टर का नाम है Magically transform your mistakes into blessings. तो माने हमने, अगर हमको लगता है कि हमने कोई मिस्टेक की है, वैसे तो हम लोग को लगता नहीं, हम लोग कोई मिस्टेक करते ही नहीं है ना, हम तो क्या करते, सब सामने वाला करता है। तो कह रहे हैं कि आज की चैप्टर ऐसा है कि उसमें हम अपनी मिस्टेक्स को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसमें, ना कि नेगेट, बस सीधे उसको ब्लेसिंग में ही हमने कन्वर्ट कर दिया। तो आज की अगर हम ये पिक्चर देख रहे हैं, तो जब हमारी मिस्टेक होती है या हमारे संग कुछ अच्छा नहीं होता है, तो अपन क्या सोचते हैं कि मतलब नॉट गुड थिंग्स, माने कुछ अच्छा नहीं हो रहा है हमारे संग, काले बादल आए, स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस। सो व्हाट दिस चैप्टर इज टेलिंग अस, कि आप देखिए, हमने हमेशा ये पढ़ा है कि रात के बाद सुबह आती है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हमने यही बातें करी हैं, ठीक है। तो आज का चैप्टर भी हमको इसी के बारे में बता रहा है कि जो भी कुछ हुआ है उससे हमारे संग कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है, कुछ उसके पीछे कुछ उसका एक रीज़न था उस चीज़ के होने का, ठीक है। तो हम लोग आज उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। अगर आप इसको देखिए, ऐसा लग रहा है
लाइनिंग तो छोड़िए, ऐसा लग रहा है कि क्लाउड्स बीच में से हट के हमको मैजिक डस्ट से हमारे को भर रहे हैं, लाइक दे आर फिलिंग आवर लाइफ विद दैट मैजिक डस्ट, है ना। किनारे से नहीं आ रही है लाइट, ये ऐसे ही ठीक से हमारे ऊपर सीधे आ रही है, जैसे भगवान जी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। सो व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट? हाउ डू वी टर्न आवर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स? यस, Yeah. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, media personality and businesswoman. या तो ओपरा विनफ्री, अगर आपने पता होगा, कई लोगों को हो सकता है आप देखते हो, ओपरा विनफ्री शो आता था पहले। अब तो पहले फिर उन्होंने क्या किया, एक चैनल शुरू किया। अब तो उन्होंने पूरा एक नेटवर्क ही ले लिया, उसका नाम है OWN, या ओपरा विनफ्री नेटवर्क, वो ही आ गया। और वो बहुत सारे स्पिरिचुअल, रिलीजियस, उन सब बारे में बोलती हैं, और वो बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करती हैं। यू नो, शी इज़ लाइक रियली हेल्पिंग पीपल। और उनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग शुरू हुई थी। मतलब जब उन्होंने ये ज्वाइन किया था न्यूज़ में या कहीं, उन्होंने जब फर्स्ट ज्वाइन किया था, तो पीपल हैड टोल्ड हर चेंज योर नेम, एकदम भी अच्छा नाम नहीं है ओपरा, ये कैसा नाम है, ठीक है। एंड शी हैड थॉट कि चलो ठीक है कर लेते हैं, प्रोड्यूसर बोल रहा है, जो भी उनका चैनल का हेड होगा उसने कहा कि ओके ठीक है चेंज कर लेते हैं। बट उन्होंने बहुत सोचा, फिर उन्होंने नहीं किया चेंज, कि नहीं मैं अपना नाम कैसे बदलूं। और उनके अब्यूजिव चाइल्डहुड था, और बहुत उनकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस थे। वो क्या कह रही हैं, टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। माने हमारे जो जख्म है, हमारे जो वुंड मतलब तो जख्म, हम सिंपल यही बोलते हैं, जो हमारे जख्म है उनको हम विजडम में, विजडम मतलब क्या हुआ, व्हाट इज विजडम? नॉलेज। हाँ, नॉलेज, एक्सपीरियंस, जो भी आपने समझा, जो उससे सीखा आपने, ठीक है, नॉलेज, उसको, अपने जख्मों को विजडम क्या करेगी, आपको और आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, किसी और को हेल्प करने में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अपने जख्मों को आप अपने प्लस पॉइंट में बदल लीजिए। तो आज का चैप्टर यही बता रहा है। और ओपरा विनफ्रे बोल रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में इतने चेंजेस देखे, इतनी कुछ चीज़ें देखी, और वो फिर भी आगे आगे बढ़ती चली गई। वेदर इट वॉज हेल्पिंग पीपल, वेदर इट वॉज रीचिंग हाइट्स, वेदर इट वॉज जो भी नाम आप फेमस जन का लीजिए, उन सब का उन्होंने इंटरव्यू किया हुआ है, ठीक है। एंड ऑल फेमस पीपल विद वंडरफुल ऑथर्स, उन्होंने उनका बहुत अच्छे से, लाइक इफ यू सी किया हुआ है। इनफैक्ट आई विल शेयर इन द ग्रुप, उन्होंने दीपक चोपड़ा का भी एक इंटरव्यू किया था, आई विल जस्ट रिमेंबर्ड अभी, एंड आई विल शेयर इट विद यू कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर थॉट्स आर, कि थॉट्स कैसे चीज़ें बदलते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट वीडियो? मैंने कोई आई थिंक पहले सेशन में कभी शेयर किया था। एनीवन रिमेंबर्स? I'll share it. I'll search for it and I'll share it. Okay. So let's continue and read what she's telling us. Why it is the tone of the chapter. Yeah. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. Yeah, Radhika, we will read a little slowly. Okay. So now she's telling every single mistake is a blessing in disguise. हम लोग को नहीं लगता है, हाँ, बट एक्चुअल में हर मिस्टेक से हमको कुछ सीख मिलने वाली होती है, ठीक है। इट इज़ अ ब्लेसिंग। तो आज की प्रैक्टिस इसको प्रूव करेगी। वो सिर्फ बोल नहीं रही, वो कह रही है इसको प्रूव करेगी, बिकॉज हम ये खुद डिस्कवर करने वाले हैं कि अनटोल्ड ब्लेसिंग्स आर हिडन विद इन एवरी मिस्टेक, ठीक है। अनटोल्ड ब्लेसिंग्स माने क्या हुआ, लाइक इफ आई शेयर माई एग्जाम्पल, कि हाँ मेरा MBA में नहीं हुआ और उसमें मैं बहुत दुखी थे। अब बोलोगे इसमें मिस्टेक क्या हुई? मिस्टेक ये थी कि मेरा जो मन था वो नहीं हुआ, हमने अच्छे से पढ़ा नहीं, जो भी कुछ था नहीं हुआ। तो अगर हम उसको सोचें कि उसको लेके आज तक हम रोते रहते, तो क्या होता, हमको अभी लाइफ में जो मेरी इतनी सारी ब्लेसिंग्स चल रही है हमको दिखाई नहीं देती, ठीक है। लाइक आई शेयर्ड विद यू, आई एम नॉट मैरिड, एंड मेरे को लग रहा था कि अरे ये कैसी मेरी लाइफ है, एकदम अच्छी नहीं है। आई वाज ऑलवेज, इफ आई हैड बीन ऑलवेज कंप्लेनिंग, हम उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते। आई हैव सो मच फ्रीडम, मेरा जब मन आए तो हम सो सकते हैं, वो बात अलग है। आई डोंट स्लीप टिल लेट, ओके, बट आई कैन डू एनीथिंग आई वांट, आई एम फ्री, आई हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द हाउस, बट नॉट एज मच एज माई फ्रेंड्स हैव और एज मच एज मैरिड पीपल हैव। सो आई एम लाइक अ फ्री बर्ड, हम उसको ऐसा समझते हैं। तो द वट एवर वी आर इंटरप्रेटिंग अ सिचुएशन एज, ओके, तो वही हमारे को समझाती है कि उसमें ब्लेसिंग्स हैं या नहीं है। एंड ये वो कह रही है हिडन मिस्टेक्स, सॉरी मिस्टेक्स के अंदर में ब्लेसिंग्स हिडन होती हैं। तो कैसे होती हैं? लेट्स रीड। A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we did not make them, we would never learn anything.
and we wouldn't grow any smarter or any wiser. या तो वो कह रहे हैं जब हम लोग छोटे थे, लाइक अ चाइल्ड, मतलब हम भी जब छोटे थे हमने बहुत मिस्टेक्स की होंगी, ठीक है, लिखने में, कलरिंग करने में, तैयार होने में, सामान तोड़े होंगे पता नहीं कितने, है ना, गरम केटल को छुआ होगा, गरम पानी को छुआ होगा, है ना, अपनी वॉच के इधर उधर फेंक दिया होगा, सामान खोया होगा। तो हर बार हमारे पेरेंट्स ने या एल्डर्स ने हमको फॉरगिव किया होगा, हमको समझाया होगा, है ना, यही हुआ था ना। आप सोचो ना कि आप इंपॉर्टेंट पेपर में कुछ काम करे होगे, हाँ, और अभी सपोज और कोई बच्चा आता है, इंक गिर जाती है उसके ऊपर, या पानी गिर जाता है, या भूल से वो पेपर ही फाड़ लेता है, ठीक है, ऐसा हुआ होगा। सो व्हाट डू यू डू? टेल मी। यू एक्सप्लेन टू द किड एंड यू फॉरगिव दैट किड, है ना, एंड इट इज अ लेसन फॉर यू कि अरे बच्चों के सामने अपने पेपर ध्यान से रखो, है ना, इट इज अ लेसन फॉर अस। या तो शी इज टेलिंग अस, जब हम बच्चों के संग इवेंचुअली उनको समझ में, हम लोग समझते हैं कि येस दे विल अंडरस्टैंड कि येस राइटिंग हैज़ टू बी प्रॉपर, फूड हैज़ टू बी प्रॉपर, स्लीपिंग इज प्रॉपर, यू हैव टू लॉक योर थिंग्स, यू हैव टू कीप योर थिंग्स प्रॉपरली। ये सब जब हम लोग बच्चों के लिए फॉरगिव कर देते हैं कि दे विल लर्न, तो हम अपने लिए क्यों नहीं करते? शी इज टेलिंग अस व्हाई इज इट दैट एडल्ट्स आर सो हार्ड ऑन देमसेल्व्स, कि कभी अगर आपसे दूध की गैस ऑन रह गई और वो गिर गया, आप अपने आप को कितना बोलते हो, ओहो मैं इतनी बुद्धू कैसी हूँ, मैं इतनी भुलक्कड़ कैसी हूँ, पूरा गिर गया दूध। वो बात अलग है, उसके बाद बहुत सारी क्लीनिंग करनी पड़ती है, इसलिए भी अपन सोचते हैं। बट शी इज टेलिंग अस वी आर सो हार्श ऑन आवरसेल्व्स कि अगर कभी हमने डीजल नहीं डलाया, पेट्रोल नहीं डलाया, तो भी और गाड़ी बंद हो गई, तो अब कितना हम लोग अपने आप को, अरे ऐसे मैंने कैसे कर दिया, कोई और करता तो मैं इसको इतना डांटती। या तो शी इज टेलिंग अस कुछ भी अपन से गलती होती है तो वी आर वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स, वी डोंट फॉरगिव आवरसेल्व्स। व्हाई इज इट? जब हम बच्चों को फॉरगिव करते हैं तो कितनी सारी चीज़ें हमने भी फर्स्ट टाइम गड़बड़ की होंगी, ठीक है, तो उस मिस्टेक को आज हम ब्लेसिंग में बदलने वाले हैं। हाँ, और वो मिस्टेक भी हमको कुछ सिखा रही थी। अगर हम सीखते नहीं हैं तो क्या होता है, वो हमारे लाइफ में बार बार आती रहती है। शी इज टेलिंग अस वी ग्रो स्मार्टर, और तभी अपन स्मार्ट और वाइज बनेंगे इफ़ वी लर्न समथिंग फ्रॉम इट। अगर आपने एक बार गाड़ी बंद हो गई, व्हेन यू फॉरगॉट टू गेट द फ्यूल फिल्ड, तो ठीक है, समझ में आया। इफ़ यू रिमेंबर इट and this doesn't happen the second time, then you have learnt a lesson, है ना। जैसे suppose कुछ हुआ ही होगा, like I'll tell you, I told you ना, on Thursday I fell and hurt myself, so it happened, मेरे संग पहले भी हो चुका था, 3-4 बार हो चुका है। क्या हर बार कैसे होता था? I would be looking at my phone while jogging or running, क्या होता था? I would fall, हाँ, और मैंने in the past 3-4 years it has happened many times. This time when I fell, इस बार मेरे को थोड़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन हुआ मेरे बॉडी में, ठीक है, हमेशा कम होता तो हम सीखते ही नहीं थे। आई वुड रन एंड आई वुड बी सीइंग माय फोन एंड आई वुड फॉल, समटाइम्स द फोन विल फॉल, और जस्ट बेयरली बच जाते थे। आई नेवर लर्न फ्रॉम इट, आई डिड नॉट ग्रो स्मार्टर। सो व्हाट हैपेंड, आई केप्ट ऑन रिपीटिंग दिस मिस्टेक एंड आई केप्ट ऑन फॉलिंग। ओके, मैंने अब सोचो ना, माय ब्रदर वाज मेकिंग फन, बोले तुम तो अब पार्क में जाती होगी, सब लोग बोलते हैं इससे तो दूर, अब पता नहीं किसके ऊपर गिर पड़ेगी। दिस व्हाट माय ब्रदर टोल्ड मी ऑन दैट डे। ओके, सो नाउ आई हैव सेड नहीं, अब हम पक्का समझ गए, इस चैप्टर आएगा ना तो इसमें मेरे को यही लिखना है कि हम समझ गए, फोन नहीं देखना है दौड़ते दौड़ते, ठीक है, जॉगिंग करते टाइम फोन हाथ में नहीं देखना है, ना वुड सी मैसेजेस और देख लिया कितना टाइम हो गया ना, दैट वे। तो अगर अपन सीखते नहीं हैं तो अपन स्मार्ट नहीं बनते, वी विल कीप ऑन रिपीटिंग दैट मिस्टेक। Okay, so today's chapter will tell us why it is that it happens with us again and again, and what mistakes can we learn from, and how can we turn that mistake into a blessing. Okay, so let's read. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. Yeah, so it is not just कि आपको कुछ फिजिकल चोट लग रही है, it can be anything, कि आप बार बार किसी जन को ट्रस्ट कर लेते हो, आप उसको पैसे दे देते हो और वो पैसे लेके भाग जाता है, ठीक है, आपके संग बार बार ये हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो, आप सोच समझ के नहीं दे रहे हो पैसे। तो दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, टिल द टाइम द मिस्टेक बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है उस कॉन्सिक्वेंसेस से, और वो तब तक होता रहेगा जब तक हम उससे वो सीख नहीं लेंगे। इट इज़ लाइक द रिपीट, वी कीप रिपीटिंग टिल वी लर्न। ओके, वील कीप रिपीटिंग द मिस्टेक्स टिल वी लर्न फ्रॉम इट, दिस इज़ अ रूल। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा करेगा ही करेगा कि जब तक हम उससे वो सीख नहीं ले लेंगे, वो सबक नहीं ले लेंगे, वो क्यों मिस्टेक हुई हमसे, इट विल कीप ऑन हैपनिंग इन आवर लाइफ। आपने सुना भी होगा अपने फैमिली में या फ्रेंड्स में
कि वो सेम चीज़ गलती बार बार करते हैं, कि बार बार उनको लड़की धोखा दे देती है, लड़की तो कम धोखा देती होगी वैसे, बट एनीवेज कि उनको बार बार कोई लड़का धोखा दे देता है। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक लाइट ऑफ इट, बट इट कैन बी विद एनीवन, कि बार बार हो जाता है, दे फॉल फॉर द सेम काइंड ऑफ अ पर्सन एंड दे हैव अ हार्ट ब्रेक। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक हम लोग उससे मिस्टेक से सीख नहीं लेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, इट्स द वेरी रीजन व्हाई मिस्टेक्स हर्ट, so that we do learn from them and don't make them repeatedly। तो तब तक हमारे लाइफ में वो मिस्टेक होती रहेगी जब तक हम उससे सीख नहीं लेंगे। ओके, so let's read how we change that। To learn from a mistake, we first have to own it, and this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake। या तो बिल्कुल यही शी इज टेलिंग अस, सबसे पहले हमको ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो गलती मेरी ही है। अगर हम ये बोले अरे रास्ता अनइवन था, मेरे शूज ठीक नहीं थे, ठीक है, किसी ने मुझे आवाज लगा दी इसलिए हम गिर गए, नहीं होगा। सो फर्स्ट आई हैव टू एक्सेप्ट कि गलती मेरी है, एंड शी इज टेलिंग अस, एंड दिस इज वेयर मेनी पीपल कैन बिकम अनडन। माने मैनी क्या, मोस्ट ऑफ अस विल नॉट एक्सेप्ट कि मेरी गलती है। ठीक है, कि अगर गाड़ी से टक्कर भी हो गई, बोले मेरी थोड़ी गलती थी, उसने टक्कर मार दी थी। ठीक है, या आपका सामान कुछ खो गया तो हम क्या बोलते हैं, अरे उसने ही ले लिया होगा। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हमने ही उसको ध्यान से नहीं रखा था, वी वर नॉट केयरफुल फॉर आवर स्टफ, इसलिए वो गायब हो गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वी आर ब्लेमिंग समवन एल्स फॉर आवर मिस्टेक्स, जबकि लेसन वो हमारे लिए है। तो फर्स्ट क्या करना है, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट कि वो गलती मेरी है। ठीक है, मेरे से वो गलती हो गई है। या एंड अच्छा, लेट्स रीड। Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket। Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend। We couldn't see them, they had a radar gun, and so we didn't stand a chance। But the mistake was ours because we were the one who chose the speed, who chose to speed। Yes, कितने जन के संग ऐसा हो चुका है, हाँ, कि स्पीडिंग के लिए आप पकड़े गए हो, हाँ, और हमने सोचा अरे मेरी क्या गलती थी, मुझे क्या पता, वो पीछे से छुप के चेक कर रहा था। अभी तो चेंज हो गया, अब कैमरा जगह जगह लग गए और आपको अपनी स्पीड खुद ही दिखाई दे रही है। हाँ, या आपने कोई रेड सिग्नल ब्रेक किया हो, आपको अरे खाली तो पड़ा था, मैं चली गई, क्या हुआ उसके अंदर, और फिर हम ब्लेम कर रहे हैं पुलिस को कि उसने हमें पकड़ लिया। तो वो हमको यही एग्जाम्पल समझा रही हैं कि उसने पकड़ा लेकिन गलती तो मेरी थी कि आई वॉज स्पीडिंग, या आई वॉज नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स। तो और हम ब्लेम किसको कर रहे हैं, पुलिस को। So let's read what happens। The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it, and so bingo, we'll attract making the same mistake again। या तो अगर कुछ गलती हुई, भले ही हम ही सफ़र की उसमें, लेकिन अगर हमने उसको एक्सेप्ट करके उससे सीखा नहीं, जब हम उससे एक्सेप्ट करेंगे कि मेरी गलती है, तभी तो हम नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहेंगे ना। इट्स लाइक आप घर से निकले और अक्सर आप वॉलेट घर में भूल जाते हो, ठीक है, अक्सर। तो जब तक आपको एक मेजर झटका नहीं लगेगा कि अरे बिना वॉलेट के आप कहीं पहुंच गए और आपको कुछ किसी ने हेल्प नहीं की, तब तक आप वो सेम मिस्टेक करते रहोगे, सेम मिस्टेक होती रहेंगी वो आपकी। बिकॉज वी वर नॉट, हम लोग बोलेंगे अरे तुमने पैसे मांगे थे इसलिए मैंने वॉलेट यहाँ रख दिया था, तो इसीलिए तुम्हारी गलती थी, वरना तो मेरे पर्स मेरे बैग में ही रहता, तो इस टाइप की चीज़ें जब अपन, तुमने मुझे बुला लिया था इसलिए दूध मैंने हाई पे छोड़ दिया, मेरी गलती नहीं थी, यू कॉल्ड मी, सो इट वॉज योर मिस्टेक। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज आवर मिस्टेक, एंड शी इज टेलिंग अस, अगर हम मानते नहीं हैं तो हमारे को लाइफ में सफ़र तो कर ही रहे हैं अपन, विल कीप ऑन सफरिंग टिल वी लर्न फ्रॉम इट, विल कीप ऑन मेकिंग द सेम मिस्टेक एंड सफरिंग टिल वी लर्न फ्रॉम दैट। ओके, सो लेट्स सी। You are human, you will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being human। But you must learn from your mistakes, otherwise your life will have a lot of unnecessary pain। या तो आप देखिए ना, हम ह्यूमंस के पास हमेशा क्या है, लाइक व्हाई आर ह्यूमंस सो यूनिक, टेल मी। या टू थिंग्स तो एकदम पक्की हैं। We can talk। Yes, we can talk, yes, and We can rectify our mistakes। rectify mistakes नहीं, ये तो नहीं है, we can think, है ना, we can think। और मेरे को तो लगता है ना, टॉकिंग तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है, लेकिन काफ़ी चीज़ों का रूट कॉज भी वही है ना, टॉकिंग एंड टोन, यस, राइट। तो एक्चुअल में टॉकिंग, द गिफ्ट ऑफ स्पीच, वी आर द ओनली स्पीशीज हु हैज़ द गिफ्ट ऑफ स्पीच एंड आर थॉट्स, आर थिंकिंग प्रोसेस। सेकंड क्या है, हमारे पास चॉइस होती है, ठीक है। ये मेरे को ना आश्मीन मैम का ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट रिमेंबर, इस बार हमने बात की उसके बारे में नहीं, कि हमारे पास चॉइस होती है
ठीक है, चॉइस बहुत अच्छी चीज़ है कि अपन गलती करते हैं, उससे सीखते हैं, तभी अपन आगे भी बढ़ते हैं। अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, तभी अपन आगे बढ़ते हैं, सीखते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप देखो और किसी स्पीशीज के पास ये चॉइस नहीं होती है। आपने कभी देखा है कि काओ एंड हॉर्स हस्बैंड वाइफ है? देखा है आपने? उनके पास नहीं। चॉइस नहीं है, ठीक है। और आप सोचो, और कोई भी माने दे आर फिक्स्ड, ठीक है। श्रद्धा जी आप ऐसे मत हंसी मेरे को, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, माने इन नेचर दे डोंट हैव चॉइस, ठीक है। मैं इमेजिन करने लगी थी। Okay. ठीक है, माने नेचर में देखिए किसी के पास चॉइस नहीं होती है। अब ये आश्विन मैम ने नहीं कहा था, ये कॉर्स सॉरी हॉर्स है, मैंने तो लिटरली मिक्सचर बना दिया हॉर्स एंड काओ वाला। बट वो कहती है गाय मर जाएगी लेकिन घास ही खाएगी, मांस नहीं खाएगी, और शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, राइट। तो दे डोंट हैव अ चॉइस, वो सब लॉज को फॉलो करते हैं, दे डोंट हैव अ चॉइस, ओके। वो अपने लाइफ में वैसे ही जिएंगे। बर्ड्स उतने ही बजे सुबह उठेंगी, वो नहीं कहेंगे नहीं आज मुझे उठने का मन नहीं है, दे विल गेट अप एट द सेम टाइम एंड दे विल गो बैक टू स्लीप ड्यूरिंग सनसेट। उनके पास चॉइस नहीं है कि वो रात में बैठ के नेटफ्लिक्स देख रही है, नहीं है उनके पास चॉइस। हमारे पास चॉइस है, हमारे पास ये फ्रीडम है, इसीलिए अपन मिस्टेक्स कर पाते हैं और इसीलिए मिस्टेक से सीख के अपन आगे बढ़ पाते हैं। आप सोचो ना, मिस्टेक्स होती हैं तभी तो किसी ने चीज़ इन्वेंट की होगी, तभी तो किसी ने पनीर इन्वेंट किया होगा, तभी तो किसी ने ऐसे सारे इन्वेंशंस किए होंगे, बिकॉज एक्सपेरिमेंट कुछ कुछ पर्पसली किए होंगे और कुछ कुछ बाय मिस्टेक हो गए होंगे। तो मिस्टेक्स आर अ ब्लेसिंग एंड वी आर ह्यूमंस, वी हैव द व्हाट इज कॉल्ड द फ्रीडम टू चूज। तभी लाइफ इतनी मस्त है, तभी लाइफ इतनी अच्छी है। वी कीप चूजिंग, वी मेक लाइफ एंड वी लर्न एंड वी मेक आवर लाइफ मोर इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो वो यही कह रही है, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स अबाउट बीइंग ह्यूमन, कि हम मिस्टेक करेंगे और हम उससे सीखेंगे, ठीक है, और हम आगे भी बढ़ेंगे। बट हमको उस मिस्टेक से सीखना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे लाइफ में अननेसेसरी पेन आएगा। ओके, इट्स लाइक सपोज आपने देख लिया कि हाँ ये नाइफ बहुत शार्प है, एक बार अपने आप को आप चोट लगाओगे, दोबारा आप केयरफुल नहीं रहोगे तो क्या होगा, मे बी आप और जोर से उससे अपने आप को चोट लगा लोगे, है ना। सो वी हैव टू लर्न, देन ओनली वी विल मूव अहेड इन लाइफ। या How do you learn from a mistake? Gratitude. या प्लीज कंटिन्यू। Yeah. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? या तो वो कह रहे हैं हम मिस्टेक को ब्लेसिंग में कैसे बदलते हैं, ग्रैटिट्यूड करके। तो वो कह रही है सॉरी, नो मैटर जितनी भी चैलेंजिंग मिस्टेक करके रखी हो हम लोगों ने, कैसी भी मिस्टेक करके रखी हो, कि माने कितने बार होता है ना, यू डोंट वांट टू टेल आल्सो कि मैंने इतने रुपए खो दिए, मैंने इतने रुपए में बुद्धू बन के पता नहीं ऐसा आइटम ले आया जो शायद हाफ क्या 1/4 प्राइस में मिलता होगा। वी हैव डन ऑल दिस, है ना, दोज वर आर मिस्टेक्स, बट इफ वी लर्न फ्रॉम देम, वी अंडरस्टूड वी हैव टू बी मोर केयरफुल। हाँ, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अपन और केयरफुल रहेंगे और हमारे सन को मिस्टेक नहीं होगी। तो शी इज टेलिंग अस हर मिस्टेक में ब्लेसिंग होती है। शी इज टेलिंग अस देयर आर ऑलवेज नॉट वन थिंग, मैनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर इन अ मिस्टेक, ठीक है। और वो मिस्टेक में जब हम ग्रैटिट्यूड ढूंढ लेते हैं तभी हम उसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो इफ़ वी थिंक ऑफ अ मिस्टेक जो अभी तक आपने, हो सकता है बचपन में ना मैंने ऐसे किया था और मैं गिर गई थी या व्हाटएवर, आपको देखना होगा कि आपकी मिस्टेक क्या थी, हाँ, और उस समय आपने ध्यान नहीं दिया। बट अगर आपके दिल में वो अभी भी है, इट इज़ लाइक जैसे नहीं बोलते एक कांटा लगा हुआ है, फांस लग जाती है, यू नो दैट स्प्लिंटर। तो जब तक हम उसको निकाल नहीं देते हैं तब तक वो दर्द करता रहता है ना। सो आज की प्रैक्टिस उसी के बारे में है, दैट वी हैव टू थिंक ऑफ दैट स्प्लिंटर एंड रिमूव इट, ओके। उसको हम अपने दिमाग से, अगर अभी भी आपको वो सोच के कहीं हर्ट कर रहा है, सो इट इज़ अ मिस्टेक एंड यू हैव नॉट लर्न फ्रॉम इट, सो वी हैव टू रिमूव इट, वी हैव टू थिंक ऑफ things to be grateful for in that situation, and then only it will turn into a blessing. Okay, so let's read. Today, think about a mistake you've made in your life. It does not matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship has not been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went
wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. या तो रॉन्डा बर्न ने हमको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि मिस्टेक मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपने किसी की जान ले ली है, ऐसा नहीं है। अगर सपोज भूले से ऐसा हो भी गया कि हाँ आपने किसी का दिल तोड़ दिया है, ठीक है, तो भी आप उसको यूज कर सकते हो। श्रद्धा जी द वे यू लाफ, हमको लगता है थोड़ा सा सीरियसली बात करनी चाहिए, हमको ज़्यादा इसको जोकिंग बना दे रहे हैं हमको लगता है, नो। तो शी इज टेलिंग अस कुछ भी अगर हमने लाइफ में किया है, लाइक आई टेल यू, लूजिंग अ टेम्पर विद अ पर्सन क्लोज टू यू, ठीक है। आई हैव शेयर्ड आई लॉस्ट माई डैड जस्ट बिफोर लॉकडाउन, तब मेरे को ये कुछ नहीं पता था। एंड आई यूज टू बी ना, लाइक जैसे होता है ना हम लोग का एक डिफरेंट टाइप का रिलेशनशिप था। एंड आई यूज टू थिंक माई डैड इज लाइक सो स्वीट, एकदम भी डिसिप्लिन नहीं है और उनके हेल्थ में इतने चैलेंजेस चल रहे हैं और डिसिप्लिन। आई यूज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद हिम, आई यूज टू स्पीक हार्शली टू हिम। बट अब मेरे को पास तो कुछ ऑप्शन नहीं, हम उनको सॉरी बोल पाए या अच्छे से बोल पाए कि आई लव हिम। तो हम इतना सोचते हैं हर इस प्रैक्टिस में। आई रिमेंबर कि कैसे करना है हमको, कि क्यों, लाइक यू नो, आपको देखना होगा। लाइक व्हेन आई एम थिंकिंग ऑफ दीज प्रैक्टिसेस, मेरे को बहुत याद आती है, हमने बहुत उनके लिए ग्रैटिट्यूड किया है। बट स्टिल जो एक्चुअल में फील करके जो हमारा रिलेशनशिप चेंज होता, वो तो अब नहीं हो सकता। आई कैन जस्ट फील कि येस, उनको कहीं ना कहीं पता चल रहा होगा कि येस आई रियली लव्ड हिम, दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू बी सो हार्श ऑन हिम, ठीक है। तो वैसे ही आप देखिए कि आपने ऐसे क्या कुछ किया है लाइफ में, यू नो, विच यू फील वाज नॉट सो ओके, एंड और कहीं ना कहीं आपको दिल में चुभ रहा है। शी इज गिविंग अस एग्जांपल्स, मे बी यू लॉस्ट अ टेम्पर, मे बी आपने अपने जूनियर को बहुत जोर से डांट दिया हो, या कोई आपके घर में हेल्प थी या कुक था या ड्राइवर था, उसको आपने एक छोटी सी गलती के लिए आपने शायद उसको काम से ही निकाल दिया है। नाउ यू थिंकिंग नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप देखो आपके लाइफ में क्या है एंड उसके बारे में ये प्रैक्टिस करनी है आपको। शी इज टेलिंग अस इट कैन बी एज सिंपल कि आपने सस्ता घर का कुछ सामान खरीद लिया और उससे वो गड़बड़ हो गया और आपको और ज़्यादा पैसे देने पड़े। ऐसे होता है ना, लाइक वी बाय, कि आप हम लोगों ने कोई यू नो मे बी, आई डोंट नो ऐसा क्या ऑप्शन हो सकता है, बट आप देखिए अगर ऐसा कुछ किया है आपने तो, या आपने कुछ महंगी चीज़ खरीद ली जो मेरे संग हुआ है, ठीक है, तो और एंड यू लेटर ऑन फाउंड आउट कि यू हैव बीन फूल्ड, ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ हुई है, तो उससे आपने क्या सीखा, ओके। तो वो चीज़ें हम लोग को इसमें इस टाइप के उसमें करनी है। एंड समथिंग विच बैकफायर्ड ऑन यू, मे बी यू टोल्ड समवन कि नहीं नहीं यहाँ से मत जाना, वहाँ से जाना, और वहाँ से गया और वहाँ पक्का ही जैम के अंदर अटक गया। सो यू हैव टू सी वॉट हैपेंड एंड see what are the blessings in that. Okay, so let's see. Once you've chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? तो हमको क्या करना है, हमको दो चीज़ें सोचनी है। पहले तो ये हमको समझना है कि हमने पहले आपको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्या चीज़ है वो। मे बी आपको लगता है कुछ नहीं है, लेकिन हर उसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको ढूंढना होगा उसको, उसके बारे में सोचना होगा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको शांति से बैठ के करना पड़ेगा, ठीक है, कि व्हाट आर यू गोइंग टू वर्क आउट। इट कुड बी समथिंग सिंपल और इट कुड बी समथिंग विच हैज़ बीन ऑन योर माइंड फॉर मे बी क्वाइट सम ईयर्स। तो उसको भी हम लोग ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मे बी यू वॉन्टेड टू टेक अप साइंस एंड यू टुक अप आर्ट्स बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, और अब तब से सोच रहे नहीं मुझे तो ना इंजीनियर बनना था, और अब मेरी लाइफ देखो, मैं इंजीनियर होती तो आज मैं क्या होती, मैं क्या होता, और मैं क्या कर रहा हूँ आज, यू नो, आई हैव टेकन अप आर्ट्स और अकाउंट्स व्हाटएवर, एंड यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ दैट एज अ मिस्टेक। या मे बी आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आपको शादी करने के बजाय आपको और हायर स्टडीज़ के लिए आप बाहर जा सकते थे, एंड यू चोज टू स्टडी और यू चोज टू गेट मैरिड व्हाटएवर, और आप आज सोच रहे हो मुझे ऐसे करना चाहिए था, मुझे तो ऐसा मौके मिले था और मैं कहाँ आके फंस गई या फंस गया। तो अगर आप ऐसा भी सोचते हो तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ओके, इनटू अ ब्लेसिंग। हाउ यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, ठीक है, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, मतलब आज आप उसमें क्या देख रहे हो कि ठीक है अब मेरी लाइफ कैसी चल रही है, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ द मिस्टेक। आप ये दोनों क्वेश्चंस, सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, फर्स्ट वाला आंसर थोड़ा देर में निकलता है। सेकंड क्वेश्चन इज ईजियर टू आंसर। सो व्हेन यू आर सिटिंग डाउन एंड राइटिंग, ये रिटन प्रैक्टिस है, आपको ये दोनों क्वेश्चन सोच के ये प्रैक्टिस करनी है, ओके। सो लेट्स सी। The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for.
every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. या हमको ये रिटर्न करना है, टाइप नहीं करना है। वो कह रही है हर मिस्टेक में इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढने के लिए ये इजी होता है कि हमने उससे सीखा क्या, माने व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट कम आउट ऑफ, ठीक है, एंड व्हाट आर द थिंग्स यू लर्न फ्रॉम इट। नो मैटर कोई भी मिस्टेक हो, कैसी भी मिस्टेक हो, उसके एंड में गुड चीज़ें होती हैं। क्या होता है, हम लोग वो गुड चीज़ों को देख नहीं रहे होते हैं, है ना। जैसे आज सिर्फ डे 0 पे या डे 1 पे अगर हम आपको कहते कि अपनी सांसों के लिए थैंक यू करिए, तो आपको लगता कि अरे सांसों के लिए थैंक यू नहीं लगता। लेकिन आज डे 26 पे जब हम इतने दिन से एक एक चीज़ें ढूंढ ढूंढ के ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो आपको इस सिचुएशन में भी पॉजिटिव चीज़ें दिखने लगेंगी। ओके, मे बी यू वुड हैव फेल्ट कि नहीं, अगर मैं आज इंजीनियर होती तो मुझे इतना काम करना पड़ता, और आज मैं बॉस हूँ अपने ऑफिस में, ठीक है, इंजीनियर होती तो हमेशा किसी के अंडर काम करना पड़ता, बट हेयर आई हैव सो मेनी पीपल वर्किंग फॉर मी। तो आपकी क्या मिस्टेक है, उसमें अब आपको क्या ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, यू हैव टू फाइंड देम आउट। एंड शी इज टेलिंग अस मेनी गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ इट एंड ऑल्टर्ड योर फ्यूचर फॉर द बेटर। माने जो चीज़ अभी अच्छी चल रही है वो ही आपके लाइफ में ब्लेसिंग है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। शी इज टेलिंग अस थिंक दिस थ्रू वेरी केयरफुली, और टोटल में 10 ब्लेसिंग लिखनी है। और नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, एवरी ब्लेसिंग यू फाइंड हैज मैजिकल पावर। देखिए उन्होंने कहा कि जो चीज़ हमको मिस्टेक लग रही थी, ठीक है, तो मिस्टेक लग रही थी, तो मिस्टेक के लिए क्या हम लोग ब्लेसिंग लिख सकते हैं इजीली? नहीं लिख सकते हैं। तो जब हम एक एक ब्लेसिंग ढूंढ के लिखेंगे तो इट विल हैव मैजिकल पावर। ओके, सो लेट्स रीड व्हाट हाउ वी शी इज गिविंग अस एन एग्जांपल। लेट्स रीड। Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. Number 1, I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. या अब आप पढ़ोगे ना, इतने अच्छे से उन्होंने ये ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग्स लिखी है ना, कि पुलिस ने हमको इसलिए पकड़ लिया और हम ग्रेटफुल हैं उसके लिए, क्योंकि वो मुझे ही बचाना चाह रही थी। क्यों? अगर हम स्पीड में जा रहे होते, ठीक है, तो और कुछ गड़बड़ हो जाता तो किसका नुकसान होता? पुलिस का तो कुछ नहीं होता, मेरा ही होता। तो द पुलिस वॉज ट्राइंग टू सेव मी फ्रॉम हार्मिंग माई सेल्फ, ठीक है। तो हमको ये देखिए कैसे किया उन्होंने। कहाँ अभी हम सोच रहे थे कि अरे पुलिस छुपी हुई थी, उसने मुझे छुप के पकड़ लिया, मेरी तो गलती थी ही नहीं, वो ही छुपी हुई थी, आई वॉज तो गोइंग बिंदास, हाँ, बट आई हैड ब्रोकन द लॉ। सो शी इज टेलिंग अस टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक एंड कन्वर्ट इट इनटू अ ब्लेसिंग, you have to find things to be grateful for in that particular situation. Yeah, let's read the next one. Number 2, I'm grateful to the police because if I'm honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. या तो अब देखिए कैसे कैसे वो लिख रही हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? इफ़ यू ड्राइव, आपको पता होगा कि एकदम सही लिख रही हैं, और हम लोग ऐसा सोचते नहीं हैं। आई डोंट ड्राइव बट आई टेल माई ड्राइवर जल्दी से ले चलो। तो क्या हुआ, अगर भगवान की दया से एवरीथिंग इज कूल, बट सपोज समथिंग हैपेंस, तो आई एम एट फॉल्ट ना। हम ही ने उसको बोला जल्दी से ले चलो, क्योंकि मुझे जल्दी जाना था। आई डिड नॉट केयर अबाउट कौन सी स्पीड में जा रहा है, क्या रास्ते में है। इफ आई टेल हिम जल्दी से ले चलो, आई एम एट फॉल्ट। या सो लेट्स रीड। Number 3, I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Yeah. Next one. Number 4, I'm grateful to the police for the wake-up call. Being pulled over did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. या एक्चुअली देखिए इसीलिए होता है ना कि नॉर्मली जो ये फाइन्स होती हैं या जब पुलिस पकड़ लेती है उसके बाद ही आप केयरफुल रहते हो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव पेड फाइन फॉर नॉट वेयरिंग अ मास्क? अभी लॉकडाउन के बाद मैनी पीपल हैड शेयर्ड कि अरे मैं गाड़ी में निकल गई और बिना मास्क के मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ, उसके बाद आप और केयरफुल रहे कि नहीं मास्क पहन के ही जाना है, सीट बेल्ट लगा के ही कार में बैठना है, हेलमेट के संग ही आपको राइड करना है। सो वेन एवर यू आर paying more attention, whenever you are thinking about such things, that is the time you have learnt your lesson. Okay, and next time you'll be more careful about it. Yeah. Number 5, I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Yeah. Number 6. Yeah. I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Yes. Number 7.
I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. यस, तो अब देखिए जो भी वो पॉइंट्स लिख रही हैं, आपको कुछ लग रहा है गड़बड़ है? फर्स्ट में जब उन्होंने बोला था कि पुलिस ने स्पीडिंग के लिए पकड़ लिया है, तो आप बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको इसमें क्या ब्लेसिंग हम ढूंढेंगे? और आप देखिए एक एक पॉइंट जो उन्होंने अभी तक जो भी पढ़ा है, आपको एक भी लग रहा है कि जस्ट ऐसे ही लिखने के लिए लिख दिया है? एवरी पॉइंट हैज अ वैलिड रीजन, एवरी पॉइंट. लेट्स रीड एंड देयर आर 3 more. Yeah. Number 8, I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day. And all they're trying to do is protect my life and my family's life. Number 9, I'm grateful to the police for making sure that I arrive home safely and walk through the door to my family as I usually do. Yes. Number 10, I'm grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. या बिल्कुल, आप देखिए हर चीज़ के लिए उन्होंने अपने ही माने कि उनकी सेफ्टी है, उनकी फैमिली के लिए अच्छा है, उनके रोड पे जो बाकी लोग हैं उनके लिए अच्छा है, एंड ही और शी इज़ बीइंग ग्रेटफुल टू द पुलिस. तो ऐसे ही आपको भी देखना है कि आपके लाइफ में क्या ऐसा था, और सोच सोच के लिखना पड़ेगा आपको. ओके, सो लेट्स सी. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? या तो शी इज टेलिंग अस एक मिस्टेक से हम इतनी सारी ब्लेसिंग्स ला सकते हैं. कैसे? पहले तो सेम मिस्टेक दोबारा नहीं होगी. ठीक है, जैसे जैसे आप उसमें पॉइंट्स ढूंढते जाओगे, आप खुद को तो अपने आप को बचा ही रहे हो, और आप बाकी लोगों को भी बचाओगे. बिकॉज इफ यू आर केयरफुल, इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम इट, यू कैन टेल अदर्स ऑल्सो, है ना? विद योर एक्सपीरियंस, विद योर विजडम, यू कैन गाइड अदर्स ऑल्सो. शी इज टेलिंग अस दैट, एंड शी इज टेलिंग अस फ्यूचर में कभी भी ऐसा लगे, कभी भी हो, या पास्ट की आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं, तो शी इज टेलिंग अस सिट डाउन एंड डू दिस प्रैक्टिस. ये प्रैक्टिस सोच के लिख के, आपको मिस्टेक का नाम नहीं लिखना है. ठीक है, आपको क्या करना है? मिस्टेक सोचनी है और उसके बारे में आपको 10 चीज़ें लिखनी है. कैसे लिखनी है? हर लाइन स्टार्ट होएगी आई एम ग्रेटफुल टू वट एवर, या आई एम ग्रेटफुल फॉर वट एवर, और आपको जो मना है आपको वो लिखना है. देखिए किसी में भी उन्होंने बिकॉज नहीं लिखा है, बट सब में एक एक रीज़न दिया है कि क्या उसमें उनको ब्लेसिंग दिखाई दी. ओके, सो शी इज टेलिंग अस नॉट ओनली दिस, इफ वी डू दिस प्रैक्टिस, शी इज टेलिंग अस इट विल गारंटी डिविडेंड्स. डिविडेंड्स क्या होते हैं? अपन शेयर खरीदते हैं और कुछ कुछ आता रहता है ना, क्या आते रहते हैं? प्रॉफिट्स आते हैं ना, समथिंग कम्स ना, Return. हाँ, Profits प्रॉफिट्स आते रहते हैं. तो प्रॉफिट्स क्या होते हैं? एक तो आपके पास पैसे हैं और आपको और बेनिफिट, डबल बेनिफिट मिल रहा है आपको. ठीक है, तो व्हेन यू आर टर्निंग योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, यू आर मेकिंग योर लाइफ इवन मोर मैजिकल. ओके, सो लेट्स रीड. और आपने तो ये सुना ही है, मिस्टेक्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. आपने सुना ही है. कैसे होती है वो स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस? व्हेन वी लर्न फ्रॉम इट. ऐसे ही एडिसन ने 100 एक्सपेरिमेंट करके बल्ब नहीं बना लिया था. लोगों ने बोला ना कि यू फेल्ड 100 times, देन यू मेड अ बल्ब, है ना, देन यू कुड इन्वेंट अ बल्ब. तो उन्होंने कहा नो, आई फाउंड 100 ways कि जिससे बल्ब नहीं बनता है. ठीक है, आप सोचो ना, एक इंसान 100 times ट्राई करता जा रहा है कि नहीं अब की बार ऐसे करेंगे, अब की बार वैसे करेंगे, है ना. तो वैसे ही जो भी हमारी मिस्टेक्स थी, जो भी हमारी मिस्टेक थी जिसके बारे में आप लिखने वाले हो, थिंक अबाउट इट कि उसके कारण आज आपकी लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें हैं. ठीक है, एंड देन यू राइट अबाउट दैट. सो लेट्स रीड. Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose one mistake you made in your life. Number 3, find a total of 10 blessings you're grateful for as a result of making that mistake, and write them down. Number 4, to help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Yeah. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day.
या तो रॉन्डाबन ने क्या कहा, हमको क्या करना है, चूज वन मिस्टेक। आपको मिस्टेक लिखनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो भी अपन लिखते हैं उसको और स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर दे। वी डोंट वांट दैट मिस्टेक हैपनिंग, राइट। तो आपको सोचना है कि आप किस मिस्टेक के बारे में लिख रहे हो। आपने ये सुना है कि पहले गैस होती है, फिर एसिडिटी होती है, फिर क्या होता है, फिर एसिडिटी को अगर अपन ध्यान नहीं दें तो क्या होता है, अल्सर हो सकता है। अल्सर को भी अपन ध्यान नहीं दें तो क्या होता है, वो धीरे धीरे सिचुएशन वर्स होती जाती है। आपने ये भी सुना होगा, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, है ना। तो आज की जो प्रैक्टिस है वो अपन को यही सिखा रही है कि अपन ने शुरू में ही उसको पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया, उस मिस्टेक को समझ लिया और उसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा, आगे आगे स्टेप में वो जाएगी ही नहीं। क्योंकि हर स्टेप पे ज़्यादा सफरिंग, हर मिस्टेक, सेम मिस्टेक जब आप बार बार करोगे तो उस सफरिंग का लेवल और बढ़ता ही चला जाता है। ओके, सो जो भी आपकी मिस्टेक है, सी द इम्पॉर्टेंट थिंग इज चूज वन मिस्टेक दैट यू स्टिल फील बैड अबाउट। आप चैप्टर में फिर से पढ़ोगे तो उन्होंने यही कहा है कि वो मिस्टेक जो अभी तक आपको चुभती है, ये नहीं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है लाइक मी कि अच्छा हो हमने मेडिसिन में नहीं गया, आई एम सो हैप्पी विद माई इंटीरियर डिजाइन, आई एम हैप्पी, तो इट इज़ नॉट बॉदरिंग मी, तो आई कांट राइट दैट। ओके, सो यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग विच यू स्टिल फील, मैंने भले थोड़ा सा भी अगर आपको उसके बारे में सोच के दिल में लगता है कि अरे काश ये कर लेते, काश उस लड़के से शादी कर लेते, काश उसको डंप नहीं करते, ठीक है, काश उसके संग वहाँ हॉलीडे पे चले जाते, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आपके मन में लग रहा है, ओके, देन यू हैव टू टेक आउट दैट स्प्लिंटर इन फ्रॉम योर लाइफ। उस कांटे को निकालने के लिए यही एक प्रैक्टिस है। Yeah, so what we have to do, we have to choose a mistake which still bothers you, you have to write 10 blessings, ठीक है। उस चीज में, उस सिचुएशन में आज आपको 10 blessings ढूंढनी है और उसको आंसर करने के लिए she is telling us think of these 2 questions, what did I learn from the mistake and what are the good things that came out of the mistake. Okay, so thank you Radhika, thank you for reading. I have So a question. yes. Sorry if I'm jumping the gun. No, tell me. Yeah. Okay. So in the book, it was also written that you make the same mistake again and again if you don't learn from it. Like if you don't show gratitude, which is fair point. But however, then that mistake, like okay, this mistake I made, this became a situation, and then again I repeat the mistake, then it again becomes a situation, and that mistake it will always involve a second person or some other, you know, material things or whatever. In my case, it's another person, so I'll take my example that way. Now the mistake kept on happening. Now that I've realized it, okay, it was my mistake as well. So how do I do gratitude for this, that okay, these are the learnings? So do I pick up a situation from where I'm It's learning like- the most, Hmm. or do I take the mistake which I've already repeated? No, what if you're talking about the person, like I'm assuming it is a friend, I'm assuming, or it could be work, so you have to tell me, then I can tell you. So Okay, if it is work, close friend. No, close friend. suppose it is a close friend, so what have you learned from it? What do you think you have learned from that mistake? Not mistake in the sense like, why do you think that relationship did not go well? Yeah, and that is why I'm guessing you're writing about it. So you can say कि now I have learned, okay, that I should not be so friendly with the person in such a short time. I should understand the person before I share my inner feelings or whatever, share my past or my, you know, जो भी आप ये होगे वो आपको बोलना होगा. Okay, so in general you are talking about a person, but what have you learned from it? That I should not have given so many gifts. Okay, ये लगता है कि अरे मैंने इतने पैसे भी तो कर दिए, ये भी लगता है. तो whatever is coming to your mind and you are writing those things. Okay, so like if I tell you, जैसे मेरे संग क्या होता था, लाइक आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, कीप शेयरिंग, शुरू में ना मैं पेमेंट टाइम से नहीं लेते थे. क्या होता था, सब पूरा घर मेरे को ही बोलता था और लास्ट में मेरा पेमेंट थोड़ी बार होती ना, लाइक आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक प्रॉपर्ली नाउ ना, इन द सेंस लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एट प्ले ना, आई हैव टू से कभी कभार मेरे को पेमेंट नहीं मिलता था एंड में, ठीक है. तो क्या होता था, सब लोग घर में होते, इसको तो आता ही नहीं है, हर बार इसके संग यही होता है, यू नो. तो इट एक्चुअली केप्ट ऑन हैपनिंग विद मी टिल द टाइम आई लर्न फ्रॉम इट. You know, I have to take my timely payments, I have to, so I am not, I kept on repeating it actually. But what did I understand? That I have to start doing things in a proper manner, in a systematic manner, that I have to give my quotations properly, that I have to take payments regularly. So that is what I learned. Okay, so in general I was saying, not मेरा mistake क्या था कि मेरे पेमेंट नहीं मिलते हैं, ठीक है. सब I can't say clients are bad, I can't say that. When I am not asking for payment, so it is my fault. तो पहले तो हम बोलते थे क्लाइंट बदमाश है, बदमाश नहीं है, क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, बट पहले वो बोलते थे. अब आई अंडरस्टूड कि नो, इट इज एक्चुअली me who is not so systematic in my terms and conditions. So now I understood. So since the time I understood this, it has been perfect.
लाइक एकदम परफेक्ट टू द टी, मैंने इतना अच्छा सब मेरा सारा सिस्टम चल रहा है, एंड इट ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दीज बुक्स, इट ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दैट. सो आप फ्रेंड्स के बारे में भी अगर लग रहा है, इफ इट हैज ओनली हैपेंड वंस, यू आर ब्रिलियंटली, यू नो द टाइमिंग ऑफ दिस बुक इज ब्रिलियंट. सो यू हैव टू फाइंड थिंग्स कि यस मैंने ये सीखा कि मैं दोस्तों के संग मुझे ऐसे करना चाहिए, मैंने ये सीखा कि एक पर्सन को इतना डिस्टेंस पे रखना चाहिए, मैंने ये सीखा कि यू नो बचपन की फ्रेंड्स आर द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, द फैमिली इज मोर इम्पॉर्टेंट, यू नो. वट एवर यू फेल्ट वर things that did not go right, you have to write like that. Am I making sense? Yes, got it. Yeah. Okay, thank you. Let's do gratitude, and then we'll take some more questions about the practice or any practice that you have. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you to the great almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this awesome day that we all had. Thank you for the brilliant Navratras that started today, and thank you for the blessings of Devi Ma for all of us. Thank you for each and every breath that is a blessing for all of us. Thank you for the smiles and lovely friends and relatives that we have in our life. Thank you for the amazing health that each one of us has. Thank you for the money that is pouring on us every day. Thank you for showing us this path of gratitude and helping us follow it. Thank you. Yes, thank you everyone. Hello Chaya ji. Thank you. Thank you. Yes, any questions about this practice? अच्छा, आप कोई भी कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सपोज एक तो मैंने ये बोला कि बचपन में आपकी कोई फ्रेंड थी या फ्रेंड था और उससे आपकी फ्रेंडशिप टूट गई, और आपको अभी भी लगता है कि अरे मेरी एक छोटी सी गलती के कारण या उसकी एक छोटी सी गलती के कारण मेरी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप टूट गई. आप उसके बारे में लिख सकते हो. ठीक है, आप ये लिख सकते हो कि आपने मे भी कॉलेज के चॉइसेस कुछ ऐसे कर लिए कि नहीं, आपने फ्रेंड्स के कारण में एक ऐसा कॉलेज ज्वाइन कर लिया जबकि आपका मन था दैट यू वांटेड टू गो फॉर अ डिफरेंट बेटर कॉलेज में भी, जहाँ पे सिर्फ पढ़ाकू लोग होंगे. आई डोंट नो, ऐसा कुछ हो सकता है, आप वो सोच सकते हो. ठीक है, आप ये भी सोच सकते हो कि आपने कुछ घर में किया या किसी को बोला जिसका रेपरकशंस के कारण घर में और भी कुछ पैराग्राफ्स होने लगे. यू अंडरस्टूड ना, कि आपने कुछ कहा, यू नो, इधर की बात उधर समथिंग, एंड यू रियलाइज कि नहीं करना चाहिए था, तो आप वो वैसा एग्जाम्पल ले सकते हो. सो यू हैव टू थिंक ऑफ थिंग्स. इट कैन बी अ स्मॉल थिंग, इट कैन बी अ बिग थिंग. सो यू हैव टू सी व्हाट इज स्टिल बॉदरिंग यू, है ना. लाइक आई रिमेंबर जैसे छोटे में ना कुछ बातें हो जाती हैं ना, सभी के संग होती हैं, तो मेरी भी लाइफ में थी. नाउ आई नॉट शेयर, आई थिंक आई एम नॉट आई टॉक टू मच अबाउट मिस्टेक्स. तो आप उस बात को सोच के भी लिख सकते हो कि व्हाट यू डिड इन स्कूल में भी, मे बी आपने स्कूल में किसी फ्रेंड के बारे में कंप्लेन कर दी और उससे आपकी फ्रेंडशिप टूट गई. ठीक है, ऐसा होता है ना. इट्स लाइक, यू नो, समवन इज हेल्पिंग अदर और आपने टीचर को बोल दिया देखिए वो उसको चीटिंग करा रही है, कुछ किया होगा आपने, है ना. या हो सकता है किसी और ने किया हो और आप उसमें फंस गए हो, वो भी हो सकता है. इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि दैट यू आर द पर्सन एट फॉल्ट. सामने वाले ने अगर आपको चीट किया है, वेदर एट वर्क, वेदर इन योर प्रोफेशन, वेदर इन योर पार्टनरशिप, तो भी आप उसके बारे में लिख सकते हो. उसने किया है, आप एकदम अच्छे थे, एक्चुअल में हो सकता है ऐसा, माने होता भी है ऐसा. ठीक है, तो भी उसके बारे में आप लिख सकते हो. ओके, सो के दैट यू हैव लर्नड कि नहीं, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट अ पार्टनरशिप, बिफोर यू टेक अप अ जॉब, बिफोर यू नो साइन द अग्रीमेंट, कि पूरा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए. जैसे होता है ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, इट इज़ लाइक दैट. तो आपने उस मिस्टेक से जो भी कुछ सीखा, उस सिचुएशन से में भी आपने कुछ सीखा, दैट यू हैव टू राइट. ओके, सो दिस इज व्हाट वाज इट. या यस, I want to share another thing if I'm allowed to. yes please. Yeah. So when we started this chapter today, before I said that I want to read it, I didn't know which chapter is this, what is the title of the topic is. But you were talking about cues, and like right before that I mentioned about silver lining. I didn't know that it's an image. And the silver lining that I was referring to, that okay, I'm trying to solve something in my life, manifesting every day that the dreams come true. It was actually somewhere my mistake, kahin pe, which I've realized, and I'm trying to fix it. Like I'm trying to fix it still. Or the title of the book is also how to turn your mistakes into wisdom. So that, like, the moment I read it, I was like, what is this? Yes, more cues. Yeah, so your more mistakes. cues. Yes. So then I had to share it. Like I was thinking through the chapter that I have to say this at the end of the reading. So this is another cue for me. Yes, so you are turning this mistake into a blessing. Okay, so wonderful, Radhika, and I'm so happy that you are here till this day. I was not sure in the sense, like, see, so many people join, but only those stay in the journey जिनका टाइम आता है चेंज आने का, है ना. तो अपना टाइम, मतलब अपन जो भी अपना टाइम आ गया है ना, एंड वी आर
changing our life and changing the life of the people around us also. Okay. So, yeah, yes. Thank you for this. Yeah. Yes. Anyone else has a question or a sharing? Sometimes, I give money to people and never I get back. Okay. Maybe I don't bother so much, or they don't even acknowledge it. Okay. And छूट जाता. Oh, but Revati ji, tell me honestly, when you are giving the money, do you think पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Do you? Means I don't even think. Okay. वो आना है नहीं आना है कुछ भी नहीं सोचती. तो नेक्स्ट टाइम आपको तो पहले तो मनी का ग्रेटिट्यूड करके देना है कि अब ये जब आएगा तो बहुत सारे पैसों के संग वापस आएगा. Okay. So you have to do little changes like this with your money. Okay, because money is something which it comes, जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फिसल जाता है something ना, it's like correct. Money is very And sticky. I don't think twice before giving. मेरे को emotionally blackmail वैसा हो जाता, डर जाती. Okay, yeah. So I feel and for some things which I give, I feel, why did I give? They don't need that. Okay. For what I give. Yes, so this practice is perfect. Do it. I have थोड़ा 5 count करना है. Okay. Maybe I have to tell tomorrow. We'll see. Which I have to, manipulate like that. I don't know. No, not manipulate. You have to say, you'll think about it. Let me think about it. Yes. ठीक है? थोड़ा Don't say सोचना tomorrow. पड़ेगा. See, there's something very important that I've learned from Ashmi ma'am. आपने सुना है कि ये हम लोग कोई सच बोल रहा होता, तुम कौन से हरीश चंद्र हो जो तुमने बोला है तो तुमको करना ही पड़ेगा. Have you heard this or said it to someone? Lot of times. Man, have you said it or you've heard it? बहुत करीब. This was brilliant. Both करी, yes. So what happens, what Ashmi ma'am says is like when we are giving our word, okay, we should be honoring it. Okay, it is called integrity. उन्होंने ऐसा पूरा एक सेशन लिया था about integrity. उसमें था आप जो बोलो वो आप करो. Okay, इसलिए बोले आप बोलो मैं कल दूंगी. नहीं. Think about it. You can think about it forever. Right? No, वो भी चुकता मेरे को कल देना है तो देना. ऐसा. बिल्कुल वैसे ही. तो आपको यही बोलना है I'll think about it. अगर आपने किसी को कहा कि I will call you, अगर आपने बोला I'll call you tomorrow और आपने कल उसको कॉल नहीं किया तो क्या होता है, all these things affect our manifestation. हमारे टाइम, see when we are committing about time, हमारा टाइम जो फैक्टर होता है हमारे लाइफ में उस पर असर आने लगता है. I have never discussed this earlier because मेरे को खुद ही इसका बहुत ही अपना टाइप का नॉलेज है. सो आई कांट टॉक अबाउट थिंग्स विच, बट ये हमने देखा है लाइक सम पीपल आर वेरी श्योर, अरे मैंने कहा था हम तो करेंगे ही, है ना, मैंने उसको बोला था मैं तो दूंगी, आज ही दूंगी. तो इफ यू आर वन ऑफ दोस काइंड ऑफ पर्सन्स हु आर वर्ड, very person. Yes, I go out of my way to finish that thing for them. Yeah, so wonderful. So things must be going as per you many of the time. Yes. Okay, तो उसको करेक्ट कैसे करना है. But see, sometimes it happens कि अरे मेरी गलती नहीं थी, उसके कारण I could not keep my word. ये आपको जैसे सपोज आपने बोला मैं कल कॉल करूंगी और कल तो खत्म होते होते रात में 12 बजेगा ना, अब 12 बजे के पहले उसको मैसेज कर दो, सॉरी आई कुड नॉट कॉल यू, आई विल कॉल यू सम अदर डे. ओके, आप ये बोल सकते हो. तो सो दैट यू आर स्टिल स्टिकिंग टू योर वर्ड, यू आर स्टिल कीपिंग योर वर्ड. आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए कि आप क्या बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो आर यू फॉलोइंग थ्रू विद इट. सो व्हेन यू स्टार्ट नोटिसिंग सच थिंग्स यू विल सी थिंग्स विल एक्चुअली स्टार्ट गोइंग फॉर यू. अगर आपने किसी को टाइम दिया है कि मैं 10 बजे आऊंगी और आप नहीं पहुंच रहे हो, आप बोलोगे नहीं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस आल्सो? यस, वी हर्ड इट बट वी नेवर डू दैट. हाँ, बट मेनी ऑफ अस हो जाता है कभी कभी, तो अलग बात है. अगर हो भी रहा है, आपको क्या करना है, आपको तुरंत उसको मैसेज कर देना, उसको कॉल कर देना है कि अरे मैंने कहा था मैं 10 बजे आऊंगी बट आई एम नॉट एबल टू कम देयर फॉर वट एवर रीजन, जो भी आपका रीजन होगा, आई विल ट्राई टू रीच एज सून एज पॉसिबल. दोबारा टाइम मत दीजिए, ठीक है. Try keeping these try making these little changes in what you are speaking and what you are committing. Because commitment सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने स्टैम्प पेपर पे किया या मैसेज किया. खुद को भी अगर आप बोल रहे हो कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगी, मैं 7 बजे घर से पहुंच जाऊंगी, that is also important. It's not with someone else. Your word is with you. Your word is with time. Your word is with supreme power. तो उसको हमको follow through करना होता है.
ओके, सो स्टार्ट नोटिसिंग। अभी एकदम उसको सीरियसली मत ले लीजिएगा, विच आई फील, मैंने बोला कि आई विल कॉल यू, हाँ, बट मैंने ये तो नहीं कहा आई विल स्पीक टू यू, बहुत फर्क हो जाता है। अगर बोला आई विल स्पीक टू यू इन एन आवर, हाउ कैन यू कमिट? आपने उसको फोन मिलाया और वो है ही नहीं वहां पे, उसने फोन ही नहीं उठाया, हाउ कैन यू स्पीक टू हिम? आप समझ रहे हो? तो लाइक दीज आर द लिटिल लिटिल थिंग्स, बिकॉज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? वर्ड से ही हमारी दुनिया बनती है, ठीक है? तो वी शुड बी अ लिटिल केयरफुल इन व्हाट वी आर स्पीकिंग एंड व्हाट वी आर कमिटिंग। या Thank you. यस, थैंक यू। या तो आप भी अपने अपने लाइफ में नोटिस करना कि आप किसी को टाइम देते हो तो टाइम पे पहुंचते हो, या आपने बच्चे को बोला, मैम इसका उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आपने बच्चे को कहा कि मैं 5 बजे आऊँगा और आप नहीं आए, ठीक है? तो बच्चा क्या सोचेगा थोड़े दिन बाद, पापा तो ऐसे ही बोलते हैं, मम्मी तो ऐसे ही बोलती हैं, आती नहीं है, या बट धीरे धीरे आपके बारे में वो भी ऐसा सोचने लगेगा, प्लस आपके लाइफ में भी लोग आपको टाइम देंगे और नहीं आएंगे, या टाइम पे बोलेंगे मैं ये करूंगा लेकिन नहीं करेंगे। तो स्टार्ट ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ एंड देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग व्हाट आर यू कमिटिंग टू अदर्स एंड व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, सो ऑल एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आज का जो चैप्टर था क्यूज वाला, इट इज ब्रिलियंट। मैंने देयर वाज अ क्रॉसिंग, देयर इज अ क्रॉसिंग, हम रोज वहां से निकलते हैं, रोज। आज ही मेरा वहां पे एक ध्यान गया, ऑर्गन टिश्यू, उसके बाद क्या लगा मेरे को ध्यान नहीं, and I was thinking, ऑर्गन टिश्यू, बहुत दिन से मैंने अपने बॉडी के लिए प्रॉपरली ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, सिर्फ एंकल और लेग्स के लिए कर रहे थे अभी थोड़े दिन से, फिर सारे ऑर्गन टिश्यू सेल के लिए ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर दिया मन में। हाँ, एंड आई जस्ट गॉट सेव्ड। आज मेरे थोड़ी सी और ब्रेकडाउन ज़्यादा, बस भगवान ने बचा लिया। लाइक यू नो, आई वाज लाइक, ओ इससे सोचते हम कि नॉर्मल में हम ये सोचते, अरे यहाँ लग जाती तो ऐसा होता, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता, ये करना पड़ता। इस बार कुछ, थैंक गॉड हम बच गए, है ना? एकदम बस ये आई एम एकदम बचा लिया भगवान जी ने, थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट ऑब्जर्विंग हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन यू एंड स्टार्ट बीइंग मोर ग्रेटफुल। नॉर्मली वी टेक अ नेगेटिव टर्न एंड कीप थिंकिंग कि अरे ऐसा हो जाता तो फिर ये होता, और फिर हम लोग पूरा फिक्स स्टोरी न्यू बना लेते हैं मन में। या सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, thank you so much. Rajiv ji, you asked when is the next session. Actually I also don't know when is my next session. और लोग जो कर रहे होंगे I'll put up in the group. जिनको हम जानते हैं जनरली ज़्यादा अच्छे से, उनके बारे में ही हम शेयर करते हैं सेशन, बट अदरवाइज देयर मैनी पीपल हु कीप टेकिंग द मैजिक बुक। या और बेस्ट है कि अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है 28 डेज तक, बेस्ट इज़ टू स्टार्ट योर ओन सेशन, क्योंकि जब आप दूसरों को कराओगे तो आप देखोगे आप ज़्यादा अच्छे से खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? इट इज़ अ फैक्ट। इट्स लाइक यू नो, यू प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, सो इट इज़ लाइक दैट। तो आप भी प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो आपकी लाइफ में भी और ज़्यादा अच्छा होएगा। ओके, सो यस, एंड प्लीज़ कल सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिएगा एंड लेट्स डिसाइड ऑन अ कलर। कल डे 27 है, लेट्स डिसाइड ऑन अ कलर, विच कलर यू ऑल वांट टू वेयर, वाइट, रेड, ब्लू। यस, और सबको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा तभी कलर दिखेगा, है ना? यस, so please write in the group what color you all of us will wear tomorrow. Yeah, okay, so I'll just take a photo so that I remember. So many of you might be, जिसको मैं शायद first time देखूंगी उनका कैमरा ऑफ रहता है। Yes, so let's take a group photo for just my memory. I'll not be posting it anywhere. ठीक है? Yeah. आप बता दीजिए कौन सा कलर पहने। आप बताइए। No, I to love all the colors. I have all the colors. I can wear anyone. जैसा सब लोग बोलो, क्योंकि we can choose any color. सेम कलर, आप एक कलर बोल दीजिए, कल सब वही साड़ी ड्रेस जो पहनना है वो पहनना। नहीं, दीपिका जी का तो रेड फेवरेट कलर है, आई हैव ऑब्जर्व्ड। या मैं जनरली रेड कलर ही पहनती हूँ, रेड येलो। हाँ, रेड येलो, ओके, सो लेट्स वेयर रेड टुमारो, रेड लुक्स नाइस। या ओके, एवरीवन लव्स रेड, सबके पास रेड है। ब्राइट कलर, फोटो भी अच्छा आएगा क्योंकि ब्राइट कलर है ना। माता जी का कलर भी हो, something different. Last time also we had red. माता जी का कलर भी रेड है। रेनू जी लास्ट टाइम भी रेड पहना, ओके, तो ठीक है रेनू जी आप ही बता दीजिए कलर। Blue. Red color is okay. रेड हम लोग ये ग्रुप में लिख लेंगे, अभी हम लोग का टाइम जा रहा है ना। आप बताओ, आप लोग ग्रुप में लिख देना, जो मैक्सिमम लोग बोलेंगे विल वेयर दैट। ओके रेनू जी, आप अच्छे लगते हो रेड में बहुत वैसे, ठीक है? ओके, सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट वी हैव बीन डूइंग? ठीक है, कल का चैप्टर बहुत अमेजिंग है। या यस अमनदीप जी।
मैम yesterday we were talking about like जो घर के लिए किसी ने पूछा था कि I want a bigger house, क्या है ना? जैसे जॉब का भी होता है कि आपकी नीड्स नहीं पूरी होती उस जॉब में एंड यू वांट अ बेटर जॉब, तो हम कह रहे हैं कि पहले हमने उस चीज की थैंक यू करना है ना, अभी जो है यस और जो चाहिए उसमें बड़ा कंफ्यूजन है मैम। नहीं नहीं, देखिए सबसे पहले जो अभी आपके पास है आपको उसका ग्रैटिट्यूड करना ही करना है। अगर हम लोग राइटिंग की बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास है उसका ग्रैटिट्यूड करना ही है। लाइक इफ आई हम अपना बताते हैं, मेरे को तो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो इफ आई वांट अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, सपोज आई वांट वेरी बिग, मतलब सपोज आई वांट अ 10,000 स्क्वायर फीट ऑफिस का मेरे को इंटीरियर्स करना है, ठीक है, 10,000 स्क्वायर फीट ऑफिस। लेकिन मेरे पास अभी कितना साइज का ऑफिस है, सपोज 1,000 स्क्वायर फीट का। तो अगर हम बोले ओ हो मेरी तो ड्रीम 10,000 स्क्वायर फीट ऑफिस करने की है और ये मेरे को 1,000 स्क्वायर फीट, इसमें क्या मजा आ रहा है, एकदम भी अच्छा नहीं है, तो हम क्या करें, हम कंप्लेन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स 10,000 की फीस डिफरेंट टाइप की होगी, 1,000 की फीस डिफरेंट टाइप की है, उसमें इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट टाइप का है। तो हमको कंप्लेन करने के बजाय उसमें ग्रैटिट्यूड करना है। क्या हम कैसे ग्रैटिट्यूड करेंगे कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट दिस ऑफिस विच इज़ 1,000 स्क्वायर फीट बिकॉज इट इज़ परफेक्ट फॉर मी नाउ। आई एम लर्निंग हाउ टू डू एन ऑफिस इंटीरियर, ठीक है, आई एम लर्निंग हाउ टू प्लान बेटर, ठीक है। तो हम उसमें आई एम सो ग्रेटफुल कि अभी मेरे पास एक प्रोजेक्ट तो आया, तो हमको उस अगर वो भी नहीं होता तो हम क्या करते, आप समझ रहे हो। तो उस सिचुएशन में अभी जो है उसके लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना है। मेरे को चाहिए 10 लाख रुपए, लेकिन आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए से मेरी कुछ तो ज़रूरत पूरी हो रही है, या तो उस 1 लाख रुपए से मेरी जो भी ज़रूरतें पूरी हो रही है उसके लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना है कि बिकॉज ऑफ दिस मनी आई कैन शॉप फॉर पूजाज, बिकॉज ऑफ दिस मनी आई कैन हैव एन आइसक्रीम, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मनी आई कैन गो आउट विद माई फ्रेंड्स एंड एन्जॉय, बिकॉज ऑफ दिस मनी आई कैन इंडल्ज इन हेयर स्पा। आप समझ रहे हो, मैंने अभी जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना। जब 10 लाख आएंगे तो हम कुछ और करेंगे, घड़ी खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, तब उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड करेंगे। लेकिन पहले अभी जो चीज़ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। ओके, लाइक अभी जो भी जॉब है, या सपोज आप जॉब के बारे में ही बोल रहे हो, तो अभी जो जॉब है उससे ठीक है उतना नहीं, जितना भी हो रहा है, आपका घर का रेंट निकल रहा होगा, आपके फ़ोन बिल्स हो रहे होंगे, आप अपने क्लोथ्स खरीद पा रहे होगे, वीकेंड पे मूवी जा पा रहे होगे, तो जो भी है आपको एक जो भी आपका बेटा आपको कुछ अलाउंस भेजता होगा, या जो भी आपके संग आपको भेजता होगा, उस चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ओके, वो खुद ही ढूंढने पड़ेंगे कि एटलीस्ट अरे इस जॉब में एटलीस्ट मेरे को खाना पीना मिल जाता है, इस जॉब में मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, इस जॉब में मेरा बॉस अच्छा है, मेरे से अच्छे से बात करता है। बाकी लोगों के बॉस तो और गंदे से बात करते हैं, वो नहीं लिखना है आपको, लेकिन ये लिखना है कि इसमें जॉब में बॉस मेरा अच्छे से बात करता है, ये जॉब मेरा घर के पास है, ठीक है। And if you're being underpaid then? देखिए ये अगर हम लोग जितना ये सोचेंगे अंडरपेड, उतना अपन कंप्लेन कर रहे हैं पहले तो, ठीक है। आपको अगर आपको लगता है बहुत ग्रैटिट्यूड करना होगा मनदीप जी, और आपके बेटे को ही करना पड़ेगा। आप सिर्फ विजुलाइज कर सकते हो कि आपके पास जो भी पैसे आ रहे हैं, आपको उसके बॉस को ग्रैटिट्यूड आपको करना होगा, उस जिस कंपनी में काम करता है आपको करना होगा। He is not giving me anything, ma'am. ओके खुद का ही कर ले, बहुत है। हाँ ओके तो आप ये विजुलाइज करिए अमनदीप जी। अब आप उसके जॉब के बारे में ना, मेरे को लगता है आप भी अच्छे क्वांटिटी में ही कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है। तो आप तो पहले यही विजुलाइज करते रहो कि आई एम सो हैप्पी, उसका पूरा हो जाता है, ठीक है, उसका ही पूरा हो जा रहा है, आई एम सो ग्रेटफुल। आप ये ब्लेसिंग्स लिखिए, प्लस विजुलाइज करिए कि वो आपको मनी भेज रहा है। वो आपको मनी भेजेगा तो आपके अकाउंट में मैसेज आएगा ना, आपके फोन में कोई मैसेज आएगा, राइट। टेल मी डायरेक्टली व्हाटएवर, वो जिस भी तरीके से आएगा, आप इमेजिन करो कि वो पैसे आ रहे हैं आपके पास और आप उस पैसों से क्या करो। सबसे पहले आपने भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया, तो आपको वो खुद बनाना पड़ेगा अपनी स्टोरी, ठीक है। आप देखिए ना, 2-3 डायरेक्टर ने अलग अलग टाइप की सेम स्टोरी में अलग अलग टाइप की मूवी बना सकते हैं। तो आई कैन नॉट क्रिएट योर विजन बोर्ड और योर विजुअल, वो आपको ही बनाना पड़ेगा, ओके। और आपको सबसे पहले, अब नहीं बोला, हम लोग सबको पता चल गया है कि आपके बेटे को और अच्छा जॉब चाहिए, है ना, और मिलेगा भी उसको, लेकिन पहले आपको और ग्रैटिट्यूड भी करना पड़ेगा, ओके। बिकॉज जितने जन सुनते हैं उतने जन की एनर्जी वहीं जा रही है, ओके। या
Thank you, Amandeep ji. Yes. So yes, anyone else has a question or a sharing? Okay, so see you all tomorrow. And color we are writing in the group, red or blue जो भी, ठीक है, और yellow आप ग्रुप में लिखिएगा. We'll all be ready in that color. Yeah. So और अच्छा, कल का चैप्टर बहुत ही अमेजिंग है. माने मेरे लिए तो एकदम लाइफ चेंजिंग चैप्टर है था वो, ठीक है. तो वो बहुत बहुत पावरफुल चैप्टर है. जो लोग कर चुके होंगे और अगर अभी भी उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो दे विल शेयर टुमारो, नॉट टुडे, कि कितना अमेजिंग चैप्टर हो वो. ओके, सो यस, थैंक यू एंड सी यू ऑल टुमारो. गुड नाइट. Thank you. Good night. Good night. Good night. All of you, good night. Thank you.